हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ऑन यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन। आज से हम लोग 11th का नहीं, आज हम लोग 12th क्लास का पढ़ेंगे। 11th क्लास का जो भी चैप्टर्स थे वो हम लोगों ने कल तक सारे ही फिनिश कर लिए थे और लास्ट चैप्टर नंबर 22 था, उसके मैंने आप लोगों को आंसर कल क्लियरली बता दिए थे। आज से हम लोग क्लास 12th का पढ़ेंगे और इसके जो भी चैप्टर्स हैं 16 चैप्टर्स हैं टोटल, तो इन सभी चैप्टर्स की सीरीज़ चलने वाली है और इन चैप्टर्स के आप लोगों के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मैं कराऊंगा। आज ये चैप्टर नंबर 1 मैं कराऊंगा 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर इस सीरीज़ को अटेंड करें, क्योंकि मैं सारे ही 16 डेज में 16 चैप्टर्स कंप्लीट करा दूंगा। और जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस रखें, ताकि इस सीरीज़ का वो लोग रेगुलरली अटेंड कर सकें। आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 की ओर। क्लास 12 का है, जो कि रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। तो मैंने इसका आंसर आप लोगों को दिया है, आप लोग देखिए यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। Reproduction is a fundamental feature of all living organisms. It is a biological process through which living organisms produce offspring similar to them. Reproduction ensures that continuous of various species on Earth. In the absence of reproduction, the species will not be able to exist for a long time and may soon get extinct. So आंसर मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है, आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, वाई। तो इसका भी मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू वेरिएंट while the combination of DNA form two different individuals, typically one of each sex. It involves the fusion the male gametes and female gametes to produce variants which are not indicate to their parents and to themselves. This variation allow the individual to adapt to continuously changing and challenging environment. Also, it leads to the evolution of better suited organisms, which ensure greater survival of a species. On a contrary, asexual reproduction allow very little or no variation at all. As a result, the individual produce are excess copies of their parents or themselves. हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वाई आर द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्स टू एज ए क्लोन। सो इसका भी मैंने आप लोगों को आंसर दिया, आप लोग यहाँ पर देखिए। A clone is a group of morphologically and genetically identical individual. In the process of asexual reproduction, only one parent is involved and there is no fusion of the male and the female gametes. As a result of spring so produced are morphology and genetically similar to their parents are thus called clones. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हम लोगों का, देख लेते हैं। ऑफ स्प्रिंग formed due to sexual reproduction have better changes of survival. Why is this statement always true? सोल्यूशन यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिया, आप लोग देख लीजिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes. The fusion allows the formation of new variants by the combination of DNA form two usually different members of the species. The variation allows the individuals to adapt under varied environmental conditions for better chances of survival. However, it is not always necessary that the offspring produced due to sexual reproduction has better chances of survival. Under some circumstances, sexual reproduction is more advantageous for certain states. For example, some individuals who do not move from one place to another place are well as settled in their environment. Also, asexual reproduction is a fast and quick mode of reproduction which does not consume much time and energy as compared to the sexual reproduction. So, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, हाउ डू यू प्रोजेनी फॉर्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को दिया, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। प्रोजेनी फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा प्रोजेनी फॉर्म बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
इसके मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट आप लोगों को दे दिए और इसका डिफरेंस आपको इन 2 पॉइंट में ही समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स organism undergoing this kind of reproduction produce offspring that are morphology and genetically identical to them. Next point देख लेते हैं। offspring thus produced do not show variation and are called clones. नेक्स्ट वाला अब हम लोग देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स of two individuals, typically one of each sex. Organism undergoing this kind of reproduction produce offspring that are not indicated to them. सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग इसका। offspring thus produce show variations from each other and their parents. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से डिफरेंस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसीडर्ड एज ए टाइपिकल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका भी आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया, आप लोग देख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इट रिक्वायर टू यूजली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड शो वेरिएशन फ्रॉम ईच अदर एंड आल्सो फ्रॉम देयर पेरेंट्स। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। मोस्ट एनिमल प्रोड्यूस सेक्सुअली बोथ एंड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन प्लांट्स। एसेक्सुअल की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गेमेट्स। सेकंड देख लें। इट रिक्वायर्स ओनली वन इंडिविजुअल। थर्ड देख लेते हैं। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स एंड आर हेंस कॉल्ड क्लोन्स। फोर्थ देख लेते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर कॉमन इन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सच एज एल्गी एंड फंगाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि था हम लोगों ने यहाँ पर देखा है और इसका लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, यह भी हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट। इट इज ए स्लो प्रोसेस और इट इज ए फास्ट प्रोसेस एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ए प्रोसेस विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स और स्पोर्स। इट involve the propagation of plant through certain vegetative parts such as the rhizome, suckers, tubers, bulbs, etc. It does not involve the fusion of male and female gametes and required only one parent. Hence, vegetative reproduction is considered as a type of a sexual reproduction. So, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था वो हम लोगों ने अब पूरा फिनिश कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पर। व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, गिव टू सुटेबल एग्जांपल्स। यहाँ पर पूछा गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है और इसके एग्जांपल्स बताइए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट। इट डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन of seeds or spores for the propagation of new plant. Vegetative part of plants such as runners, rhizomes, suckers, tubers, etc. can be used as a propagules for a rising new plant. यहाँ पर मैंने आप लोगों को देखिए 2 एग्जाम्पल दिए हैं। आइज ऑफ पोटैटो, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है लीफ बर्ड्स ऑफ बैरोफिलियम, तो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोग देख लीजिए। इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बता दिया जिसमें कि एडवांटेजियस बर्ड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डिफाइन जुबिलियन फेज। बी नंबर पर पूछा गया है रिप्रोडक्टिव फेज, सी नंबर पर सेंस्टेंस फेज। सो यहाँ पर देख लीजिए ए वाला जुबिलियन फेज का देख लेते हैं। दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आफ्टर इट इज बर्थ एंड बिफोर इट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। बी वाला देख लेते हैं। इट इज ए टाइम पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सी नंबर का देख लेते हैं। इट इज ए टाइम पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड एंड लूज देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं जो कि आप लोगों की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। हायर ऑर्गेनिज्म हैव restored to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? इसका आंसर देख लीजिए। Although sexual reproduction involves more time and energy, higher organism that restored to sexual reproduction and in spite of its complexity. This is because this mode of reproduction help introduce new variation in progeny through the combination of DNA from two
different individuals. These variations allow the individual to cope with various environmental conditions and thus make the organism better suited for the environment. Variations also lead to the evolution of better organisms and therefore provide better changes of survival. On the other hand, asexual reproduction does not provide genetic differences in the individuals produced. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। आइए इसको भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन व्हाई मेयोसिस एंड गेमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। इसका भी मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया, आप लोग देखिए अपनी स्क्रीन पर और मैं बता भी रहा हूँ। मेयोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ रेडिशियोनल division in which the amount of genetical material is reduced. Gametogenesis is the process of formation of gametes. Gametes produced by organism are haploid containing one set of chromosomes. While the body of an organism is diploid, therefore the producing haploid gametes. Gametogenesis, the germ cell of an organism undergoes meiosis. During the process, the myocytes of an organism undergo two successive nuclear and cell division with a single cycle of DNA replication to form the haploid gametes. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि यहाँ पर बताना है क्या है 2n की n। ओके, यानी कि 2n को हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं, n को हैप्लॉइड। ओवरी की बात कर लेते हैं तो ये डिप्लॉइड होती है। बी नंबर पर आंसर पूछा गया, ये भी डिप्लॉइड होता है। एग हैप्लॉइड, पोलन हैप्लॉइड, मेल गैमेट्स आर हैप्लॉइड, ज़ायगोट्स आर डिप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का। इसमें पूछा गया है डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर दिया है, मैंने आप लोगों को देख लेते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस in which the fusion of male and female gametes takes place outside the female body in an external medium, generally water. Fish, frog, starfish are some organisms that exhibit external fertilization. Disadvantages of external fertilization: in external fertilization, eggs are less chances of fertilization. This can lead to wastage of a large number of eggs produced during this process. Further, there is an absence of proper parental care of spring, which result in a low rate of survival in the progeny. क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन जूस्पोर्स एंड जाइगोट्स। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 ही पॉइंट बताए हैं, 2 ही पॉइंट में मैं इसका डिफरेंस आप लोगों को दे दूंगा और नॉर्मली आप लोग अच्छे से समझ भी जाएंगे। ए नंबर पर देख लेते हैं। जूस्पोर्स इज ए मोटाइल asexual spores that utilize the flagella for movement. सेकंड देख लेते हैं, इट इज एन asexual reproductive structure. जाइगोट की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें पॉइंट भी मैंने 2 दिए हैं, आप लोग फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए। ए जाइगोट इज ए नॉन मेटाइल डिप्लॉइड सेल फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, इट इज ए फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग आ गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 को भी हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन गेमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। सो ये काफ़ी छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आप लोगों ने ये चैप्टर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ये डेफिनेशन नॉर्मली आनी चाहिए। फिर भी आइए, क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया, मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। सो यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन गेमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस का। गेमेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम डिप्लॉइड म्योसाइट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द डिप्लॉइड ज़ायगोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है आप लोगों के एनसीईआरटी में, डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन ए फ्लावर। सो इसका भी देख लीजिए, मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए डिप्लॉइड ज़ायगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ायगोट डिवाइडेड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। द fertilized ovules form a seed. The seed contains an embryo enclosed in a protective covering called the seed coat. As the seed coat further, other floral part wider and fall off. This leads to the growth of ovary, which enlarge and ripens to become a fruit with a thick wall called the pericarp.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है आप लोगों की एनसीईआरटी में, व्हाट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर फ्रॉम योर नेबरहुड एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर फाइंड आउट देयर कॉमन एंड साइंटिफिक नेम्स। सो ये क्वेश्चन तो आप लोग नॉर्मली कर ही लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एग्जामिन ए फ्यू फ्लावर ऑफ एनी क्यूकुरवेट प्लांट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टिमुलेट एंड पिस्टुलेट फ्लावर। डू यू नो एनी अदर प्लांट दैट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको भी मैंने सॉल्व करके बता दिया है, आप लोग थोड़ा सा रीड कर लीजिए। वैसे इससे कोई क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं और ना ही ये इम्पोर्टेंट है, 0% पर ही क्वेश्चंस हैं बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, वाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपारस एनिमल्स एट ए ग्रेटर रिस्क एज कम्पेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपारस एनिमल्स। तो यहाँ पर इसका भी आंसर लिखा हुआ है, ओविपारस एनिमल्स lay legs outside their body. As a result, the eggs of these animals are under continuous threat from various environment factors. On other hand, in viviparous animals, the development of the egg takes place inside the body of the female. Hence, the offspring of an egg-laying or oviparous animal is at greater risk as compared to the offspring of a viviparous animals which gives birth to its young horse. तो यहाँ पर हम लोगों ने 12th क्लास का क्वेश्चन जो भी थे वो हम लोगों ने पूरे ही सॉल्व कर लिए हैं, फिनिश कर लिया पूरे चैप्टर्स को, और सारे सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को रेगुलर ही क्लास मिल सके, और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी रेगुलरली, तो उनको इन क्लासेस से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोग शेयर भी कर दीजिए वीडियो। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।